Hello students, welcome back to my channel. Today we will study about the topics of real analysis, that is applications of supremum and infimum. That's all for today. Let's get started. अब second application क्या था इसका? Let S be any non-empty subset of R. Then जो हमारे पास AS सेट होता है वो कैसा दिखेगा? AS where A belongs to any real. Now अब इसमें दो केसेस हैं, when A is greater than 0 and when A is less than 0, greater than or equal to 0. So इसमें जो यहाँ पर सुप्रीमम आएगा A of S का, that would be equal to A सुप्रीमम of S, and जो infimum आएगा हमारा AS, that would be equal to A infimum of S. And when A is negative, then supremum of AS is equal to A infimum of S. Similarly, infimum of AS is equal to A supremum of S. अब मैं एक एक प्रूफ करवा देती हूँ दोनों साइड का. एक हम इसमें इन्फिमम का करते हैं और इसमें सुप्रीमम का करते हैं. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. लेट इन्फिमम ऑफ AS इज इक्वल टू L एंड इन्फिमम ऑफ S इज इक्वल टू K. So when infimum of AS is L, then what would it imply? L is less than or equal to AS for all S belonging to S, which in turn implies, since यहाँ पे A हमारा पॉजिटिव है, अगर हम A को डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा. L by A is less than equal to S for all S belonging to S and A was are positive, which implies L by A is lower bound of S, and which in turn implies जो लोअर बाउंड्स होते हैं सारे के सारे वो सारे छोटे होते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन्फिमम से. L by A is less than or equal to K, which implies L is less than or equal to AK. अब हम इसका देखते हैं. इन्फिमम ऑफ S हमारा K था, तो उसका क्या मतलब हुआ? K is less than or equal to S for all S belonging to S. अब A हमारे पास R पॉजिटिव है, तो अगर ये हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करें साइन चेंज नहीं होगा. AK is less than or equal to AS for all S belonging to S, or you can say for all AS belonging to the set AS. And similarly इसमें भी हम लिख सकते हैं for all AS belonging to the set AS. तो हमारे पास अब जो ये AK आ गया, AK is lower bound of set S, which in turn implies AK is less than or equal to L. अब इन दोनों फर्स्ट और सेकंड उससे क्या पता लग रहा है हमें? L is equal to AK, which implies L क्या था हमारे पास? Infimum of AS, which is equal to A infimum of S when A is greater than or equal to 0. अब ये लेस देन वाला केस करते हैं हम, सुप्रीमम वाला. लेट सुप्रीमम ऑफ AS is equal to K and supremum of S is equal to A U, and A is any real number less than 0. So अब ये इसका सुप्रीमम है, उसका क्या मतलब हुआ? फॉर ऑल AS belonging to AS they are less than or equal to K for all AS belonging to AS, which implies S is greater than or equal to K by A, क्योंकि A हमारा नेगेटिव था. फॉर ऑल S belonging to set S, एंड इसमें हमने इन्फिमम लेना है, मैंने कल से सुप्रीमम ले लिया था. इन्फिमम ऑफ S इज इक्वल टू L सपोज कर लेते हैं.
तो इससे क्या पता लग रहा है हमें, k बाय a इज लोअर बाउंड ऑफ सेट S, और सारे लोअर बाउंड इन्फिमम से छोटे होते हैं, विच इन टर्न इम्प्लाइज k बाय a इज लेस देन और इक्वल टू L। अब a हमारा छोटा था, अगर ये दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन चेंज होगा, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू AL, वापस फर्स्ट आ गया। अब ये वाली डेफिनेशन यूज करते हैं इसकी, S is greater than or equal to L for all S belonging to the set S। अब A is any less than जीरो क्वांटिटी belong to real, और वो अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज होगा, AS is less than or equal to AL for all AS belonging to set S, and AL क्या हो गया अब हमारा अपर बाउंड ऑफ सेट AS। सारे अपर बाउंड्स सुप्रीमम से बड़े होते हैं, सो सुप्रीमम ऑफ सेट AS is less than or equal to AL, which in turn implies supremum of AS is less than or equal to A infimum of S। और ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आई थी फर्स्ट, उससे क्या पता लग रहा है, k is equal to AL, so which implies supremum of AS is equal to A infimum of S। अब हम थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। बेसिकली हम कोई दो सेट्स लेंगे, A एंड B नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ R, और जो A प्लस बी होगा हमारे पास सेट बनेगा वो क्या होगा, A प्लस बी वेयर A इज कमिंग फ्रॉम A and B is coming from B। Then supremum of A plus B is equal to supremum of A plus supremum of B, and similarly infimum of A plus B is equal to infimum of A plus infimum of B। मैं ये वाला पार्ट करती हूँ नाउ। इसका प्रूफ हल्का सा डिफरेंट वे से होगा। लेट infimum of A is equal to L1 and infimum of B is equal to L2। अब इनकी डेफिनेशंस क्या कहती हैं हमें, L1 is less than equal to A for all A belonging to A, and L2 is less than or equal to B for all B belonging to B, which in turn implies, दोनों स्टेटमेंट्स को प्लस करो, L1 plus L2 is less than equal to A plus B for all A belonging to A and B belonging to B, which in turn implies L1 plus L2 is less than equal to A plus B for all A plus B belonging to A plus B। सो इससे हमें क्या पता लगता है कि L1 plus L2 is the lower bound of A plus B। अब हमें बेसिकली शो यही करना है ना कि L1 plus L2 is infimum of AB, तो हम कोई एक रियल नंबर ले लेते हैं इससे बड़ा और उसको शो कर देंगे कि वो लोअर बाउंड नहीं हो सकता, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर लेते हैं। लेट D belongs to real and D is greater than or equal to L1 plus L2, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, D माइनस L1 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू L2। अब हमें पता है कि L2 क्या था, क्या हमारे पास इन्फिमम ऑफ B। अब अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से कोई भी क्वांटिटी बड़ी होएगी, सो उससे छोटी कोई क्वांटिटी सेट के अंदर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। देयर एग्जिस्ट B belonging to B such that B is less than or equal to D minus L1, ठीक है। अब B L1 यहाँ ले जाओ,
और यहाँ पे d प्लस b कर दो। अब अगर कोई क्वांटिटी L1 क्या था हमारे पास, इन्फिमम ऑफ a, और अगर कोई क्वांटिटी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से बड़ी हो, सो उससे छोटी कोई क्वांटिटी उस सेट के अंदर लाई करेगी। हेंस देयर एग्जिस्ट a बिलोंगिंग टू a। अगर इसमें आपको a b में कन्फ्यूजन हो रही है, सो वी कैन डू दिस, वी कैन राइट इट b1 and this a1 such that a1 is less than or equal to d plus b। सॉरी यहाँ माइनस आएगा, hence b1 plus b1 is less than or equal to d for some a1 belonging to a and b1 belonging to b, which implies a1 plus b1 belongs to the set a plus b, और हम इसको नाम दे देते हैं c, which implies c is less than or equal to d for some c belonging to a plus b। अब हमने ये जो d लिया था वो L1 plus L2 से कोई बड़ा लिया था और उससे छोटा हमने एक एलिमेंट सेट a plus b में दिखा दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ, d is not an upper bound of a plus b, hence L1 plus L2 is infimum of a plus b, which in turn implies this statement, infimum of a plus b is equal to infimum of a plus infimum of b। So इसका कंसेप्ट बेसिकली यही था कि अगर हमने L1 plus L2 को लोअर बाउंड शो कर दिया, उससे बड़ा कोई एक नंबर लिया, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर लिया और उसे शो कर दिया, वो कभी भी लोअर बाउंड हो ही नहीं सकता। कोई भी हम L1 plus L2 से कोई भी बड़ा नंबर लें तो उससे छोटा हमेशा एक एलिमेंट हमारे पास सेट में एग्जिस्ट कर ही देंगे हम a plus b। तो हेंस ये हमारे पास ट्रू हो गया। ये भी सिमिलर लाइंस पे ऐसे ही प्रूफ करना है। इसमें एक कंडीशन थी कि a एंड b शुड बी बाउंडेड सेट्स, दैट इज़ अगर ये वाला प्रूफ करना है तो a एंड b दोनों बाउंडेड अबव होने चाहिए, और अगर ये प्रूफ करना है तो a एंड b दोनों बाउंडेड बिलो होने चाहिए। वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं जो हमें क्या कहती है, व्हेन a and b are subsets of R, non-empty subsets of R, such that a is bounded above and b is bounded below, then और हमें ये भी दे रखी a is less than b for all a belonging to a and b belonging to b, then supremum of a is less than equal to infimum of b। अब इसको प्रूव करते हैं। अब हमें जो दे रखी है स्टेटमेंट वहाँ से चलते हैं हम। a is less than equal to b for all a belonging to a and b belonging to b। पहले हम ये वाला देखते हैं, for all a belonging to b। a का क्या मतलब हुआ कि b is upper bound of a। अब अपर बाउंड है ये a का, सो इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। सुप्रीमम ऑफ a हमेशा सुप्रीमम ऑफ a लीस्ट अपर बाउंड होता है, लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, अब फॉर ऑल b बिलोंगिंग टू b, अब सुप्रीमम ऑफ a क्या हो गया हमारा, लोअर बाउंड ऑफ b, और सारे के सारे लोअर बाउंड्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दैट इज इन्फिमम से छोटे होते हैं। सुप्रीमम ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू इन्फिमम ऑफ b।